I was working in Margari, well now I'm working at Outfitters as a visual merchandiser. It's funny because I was hired as a visual artist. I used to pay for them initially for the textiles, especially NCA. Let's talk about it. जैसे अब तुमने पर्दा उठाई दिया तो फिर मैं थोड़ा सा उसको और को पूछ सकता हूँ. They're known for their sort of chaos, their sort of wild thoughts and wild structures and wild methods. It was hard. It wasn't easy. So when you like graduate, तो like how it was in NCA कि आप एक बबल में होते हो. Like आपको मार्केट का नहीं पता क्या. सही. Because you think आप artist बन गए, you're a big thing now, but like it's not like that. It was a big shock because कभी तो experience ही नहीं हुआ था, मार्केट का पता ही नहीं था. But आपके पास अगर visual arts की डिग्री है ना, so basic aesthetic जो होते हैं ना चीज़ों के आपको मिल जाते हैं. बाकी rest is your experience. Experience आपको पता चलता है. Need to have a good research of course. ठीक है. Trends क्या चल रही है. सही. Within the music, these are the key factors जो आपको ये में देखने पड़ते हैं. आपकी कस्टमर की जर्नी होती है, when the customer is entering the store, तो आपने उसका flow किस तरह से बनाना है. Most of the elements were used by painted, so it was like a great experience. It's an amalgamation, basically, how you evolved from the Mughal era to the modern world. Assalamu alaikum everyone. Again, I welcome you to another episode of Tangent, the design series where we're talking about how design is being practiced in Pakistan. We're inviting a lot of people from different domain, different segments, and we're trying to understand what's happening in their industry, their domain, और उनकी अपनी practice किस किस्म से है. And today we have another guest from fashion industry, and we'll get to understand what visual merchandising is and what brand management is. And I'm really excited because there are some other aspects of this guest's practice that he would tell himself. तो अस्सलाम वालेकुम. कैसे आप? मैं ठीक ठाक जाज़ेब, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. जाज़ेब थोड़ा सा आप अगर खुद बताएंगे अपनी प्रैक्टिस के बारे में तो आई थिंक वो बेहतर होगा. Okay. So I'm a visual artist. I graduated from NCA, and I'm doing my practice as well as a miniature painter, and I was working at Margari. For now, I'm working at Outfitters as a visual merchandiser. Okay. Yeah. That's really impressive. That's really impressive. You're very humble about it, but I think that's really nice. But मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊँगा कि आपने बताया कि आप एक विजुअल आर्टिस्ट हैं और आपने मारियाबी पे भी काम किया, अब आप आउटफिटर्स पे हैं. मुझे ये बताओ जहांजेब कि हाउ डिड यू एंड अप इन फैशन? कहाँ से शुरू हुआ ये? So it's funny because I was hired as a visual artist. I used to pay for them initially for the textiles. अच्छा. Then there's a whole transition happened. I started working in the VM department as well. ठीक है. ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने stores खुलवाने शुरू कर दिए. The VM had left and I was heading the VM department. And then meanwhile I used to go to the shoots as well. So ठीक है. I have an experience of the marketing side as well as the VM side. So like all in all, I was handling that. Okay. So you snuck around, while painting and while drawing your things, and you're like, अच्छा ये कैसे होता है ना? Yeah. I can do this. Yeah. है ना? कुछ इस तरह का सा था. हाँ. कैसे? It was like a good company in terms of it was very fluid सही. and like I got to do a lot of things like, जो कि I think यूनिवर्सिटी वाले टाइम में मेरी एक्सपीरियंस नहीं की हुई थी. इवन ठीक है. आई डोंट नो कि हमारे पास एक्सपीरियंस था मार्केट का. सही. So like especially NCA, let's talk about NCA. Yes. So professionally they don't tell you the things. ठीक है. सही. So yeah, a lot of things I learned in the industry. सही. At Margari. And ठीक है. now I'm in Outfitters. जैसे अब तुमने पर्दा उठाई दिया तो फिर मैं थोड़ा सा उसको और को पूछ सकता हूँ एक्सक्लूसिवली कि जो आर्टिस्ट हैं उन दे आर नोन फॉर देयर सॉर्ट ऑफ केओस, देयर सॉर्ट ऑफ वाइल्ड थॉट्स एंड वाइल्ड स्ट्रक्चर्स एंड वाइल्ड मेथड्स. बट फैशन जैसी हाई पेस इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी स्ट्रक्चर है. देर लाइक अ वेल ऑयल्ड मशीन, ऑल्दो दे आर ऑल्सो वेरी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव. बट वो जो आर्टिस्ट हैं वो कैसे टेम्पर किया तुमने अपने अंदर का आर्टिस्ट के वो रॉ आइडियाज भी, वाइल्डनेस भी, बट देन स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन? It was hard. It wasn't easy. So when you like graduate, तो like how it was in NCA कि आप एक बबल में होते हो. Like आपको मार्केट का नहीं पता क्या होता है. Because you think आप आर्टिस्ट बन गए, you're a big thing now, but like it's not like that. You're cool, You're cool. So it was a big shock because कभी तो एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ था, मार्केट का पता ही नहीं था. बट एज अ पर्सन, मेरी पर्सनैलिटी, आई टेंड टू
make friends easily. I can do that. Yeah. Okay. So इस तरह I think भागे So वो सोशल एक्सपीरियंस है, वो लर्निंग से, वो फिर तुम्हें वो फैशन के अंदर वो Fashion के अंदर, वो ट्रांसमिट टू द I got a job offer on LinkedIn as well. I moved back to Quetta. Okay. I was in Quetta क्योंकि उधर LinkedIn पे मुझे HR की email आई हुई थी. We're looking for visual artists. So that's how I ended up at Marigi, and I spent like 6.5 years there. 6.5 years. Yeah. That's like a Good time. good time. Good time. Yeah. They must be like missing you. उन्होंने तुम्हें कितनी इतनी आसानी से जाने कैसे दिया? आसान नहीं था मेरे लिए भी. अच्छा. It wasn't easy. फिर कैसे हुआ वो सारा? The transition. It was difficult. It was difficult. Yeah. It was difficult. मुझे ये बताओ कि अब थोड़ा सा उस पर जाते हैं कि जो एक आर्ट की प्रैक्टिस है और एक जो फैशन की प्रैक्टिस है, क्रिएटिव वाइज, क्रिएटिव आइडियाज एंड प्रोसेसेस एंड कन्वर्टिंग दोज आइडियाज इनटू आइदर विजुअल्स और आइदर प्रोडक्ट्स, उसमें सिमिलैरिटीज क्या है और डिफरेंस कोई है उसके अंदर? So I think आपके पास अगर विजुअल आर्ट्स की डिग्री है ना, सो बेसिक एस्थेटिक जो होते हैं ना चीज़ों के आपको मिल जाते हैं. ओके. बाकी रेस्ट इज योर एक्सपीरियंस. सही. एक्सपीरियंस आपको पता चलता है, देन यू नीड टू हैव अ गुड रिसर्च ऑफ कोर्स. ठीक है. ग्लोबल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, सही. लाइक मार्केट में क्या चल रहा है, फास्ट फैशन चीज़ें कैसे इवॉल्व हो रही हैं. सो more or less is the same thing if you talk about aesthetics and the creativity. So it's the same thought process. You have to make a billboard. There has to be a story. What's the background? And then you move to the next step. जहाँ पे एक पेपर पे कोई चीज़ आ जाती है. विजुअल मर्चेंडाइजिंग का भी मुझे बताओ फिर, किस तरह तुम विजुअल मर्चेंडाइजिंग अब तुम हेड कर रहे हो वहाँ पे आउटफिटर्स के अंदर, एंड हाउ मेनी स्टोर्स आर देयर? We have 57 stores. 57 stores. Yeah. That's again a big number. Yes. तो Big responsibility. Okay. Yeah. But it's definitely exciting. It is exciting. It is exciting. It is exciting. Uh, And it's a Western brand and a leading Western brand. Okay. And yeah. So how do you come up with these experiences जो virtual merchandising के experiences होते हैं? मुझे ये लगता है कि जैसे एक अगर मैं दोबारा कंपेयर शायद कर रहा हूँ कि एक विजुअल है या एक ग्राफिक है, वो शायद कैंपेन में लोग देखकर स्टोर में आ तो जाते हैं, आपने उनको ट्रैक कर लिया, बट वो स्टोर का जो एक्सपीरियंस है, आई थिंक दैट इज ऑल्सो रियली इम्पोर्टेंट. It is very important. है ना? Of course, like आपके स्टोर का एम्बियंस, द इंटीरियर्स, द फिक्सचर्स की हाइट, आपने कितने लेवल पे अपनी मर्चेंडाइज लगाई हुई है, एंड देन स्मेल, इवन द म्यूजिक. ओके. दीज आर द की फैक्टर्स जो आपको ये में देखने पड़ते हैं. सो देन मिड फ्लोर डिस्प्ले, हाउ योर आपकी कस्टमर की जर्नी होती है, व्हेन अच्छा. द कस्टमर इज एंटरिंग द स्टोर, ठीक है. तो आपने उसका फ्लो किस तरह से बनाना है. सही है. आपने न्यू अराइवल्स कहाँ पे प्लेस करने हैं, आपका ए जोन कौन सा है, बी जोन कौन सा है, सी जोन कौन सा है. सो इट्स अ होल साइंस. ओके. या सो यानी कि वो बात वहाँ पर ख़त्म नहीं होती कि आपने एक बहुत अच्छी कैंपेन की, बहुत अपीलिंग मॉडल ले लिए, आपने वो पूरी कैंपेन बना के एग्जैक्टली द ब्लास्ट कर दिया. beyond that. It's beyond that. कैंपेन इज लिमिटेड आर्टिकल्स की होती है, बट स्टोर पे ऑनगोइंग आपके पास इतने ज्यादा आर्टिकल्स हो रहे होते हैं जिसको आपने अकोमोडेट करना होता है. कैंपेन तो देयर इज अ सर्टेन रेंज जो आपके पास नहीं है, उसका शूट हो गया, दैट्स इट. एंड देन स्टोर पे आप जाते हो, यू विल सी पुरानी कैंपेन्स के भी कपड़े लगे हुए हैं, हाउ यू आर मैनेजिंग दैट and everything. So and everything. That must be tricky to balance all those. Yeah, of course. All those There things. is there can be a color story. It can be theme based. So that's how we managed to display the merchandise. And तुम कहोगे कि जिस तरह हमारी फैशन इंडस्ट्री ने पिछले 12 और 15 साल या इवन 20 साल के अंदर ग्रो किया है, now some of the things that we're doing domestically, they are easily comparable to anything that's happening globally. Would you say that? I think COVID के बाद बहुत चीज़ें evolve हो गई हैं. कैसे? COVID के बाद even interior में there was loss. There's nostalgia. ठीक है. So now you see the interiors, it's more towards curved edges, softer paint, neutral tones. अच्छा, मैंने नोटिस नहीं किया, मुझे नहीं पता था. Yeah. प्लीज. So it happened like after the COVID era. ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों? So it gives you, it's a cave-like structure. Comforting. Comforting. Yes. Okay. Even like जब आप square रखते हो, it's not, round edges are more softer. ठीक है.
they're more Comfort, welcoming, yeah, after easier the to whole episode of COVID, हाँ it was important. ठीक है Yeah, that's what evolved. ओके। और अब जो है मिस्टर मैं देख रहा था कि शायद जैसे ये कुछ नए ब्रांड्स हैं, लुलू सर है, या आई थिंक आप भी एक ब्रांड के साथ काम कर रहे थे, एओमी है, और क्या कहते हैं मारिया बी का बेसिक्स भी है, नए से नए ब्रांड्स आ रहे हैं। सिफर बाय सानिया भी एक आई थिंक वो एक बहुत मज़े का ब्रांड है कि जो वो ऑर्गेनिक्स के ऊपर काम कर रहे थे। मुझे लगता है कि शायद ये एक सेकेंड या थर्ड वेव आ रही है अब पाकिस्तानी ब्रांड्स की, कैसी है? हाउमी के साथ मैंने कोलैबोरेशन किया था. अच्छा Yeah, because their first collection was so I paint as well. ओके Yeah. हम ये साथ साथ दिखाते हैं, जो आपने दिखाया ना ये हम साथ साथ दिखा रहे हैं। Okay. So they used my paintings Okay. on the articles on the merchandise. It was the first collection. ओके That was a very good experience. आई थिंक वो जो आपने अपने कुछ एलिमेंट्स इनकॉर्पोरेट किए थे, जैसे वो फ्लावर वाला था, इट वाज फ्रॉम योर Yeah, it was from my painting. Miniature and painting. You'll find जो मुगल मिनिएचर में आपको एक वाटर की डिटेल्स मिलती हैं जिस तरह से पेंट हुई होती है. यस You'll find those patterns in प्लीज the ये back as well. दिखाइए, इसका जूम अप कर दें इसको। Yes. अच्छा So most of the elements were used from my paintings. So it was like a great experience. no this I yes this definitely would be a great experience for you, but for me as well, you know, I was blown away when you showed it to me. No buttering, कोई मक्खन नहीं लगा रहा मैं तुम्हें, इसलिए नहीं कि तुम मेरे गेस्ट हो, बट जिस तरीके से वो उसमें है ना, प्लीज़ इसको ज़रा उसको जूम इन करके दिखाइएगा। जो ट्राउज़र के ऊपर जो डिटेल्स है ना, ये एक तो उसके जानजेब की पेंटिंग में से भी हैं, लेकिन उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, दिस हैज़ दैट कनेक्शन, Yeah. एक हिस्टोरिकल और एक लेगेसी वाला कनेक्शन भी है। Connection. एंड It's amalgamation basically how हाँ। you've evolved from the Mughal era to हाँ the modern world. You're exposed to the modern world. So it's amalgamation between two eras. टू एराज, एंड इट्स अ रियली गुड मिक्स कि वो एक उसमें आर्ट, कंटेम्प्रेरी आर्ट की भी वो उसके अंदर वैल्यू है, That's एस्थेटिक है। how the fashion is also evolving. You'll हाँ। find there's Rasta as well. सही है। ठीक है. Highway is one of, it's doing, the brand is doing a great job. ठीक है। Different silhouettes, details इनकी बहुत on points होती हैं. So you'll find a lot of art happening on the clothes now. क्लोथ्स नाउ। Yeah. नहीं, डेफिनेटली बट यस आई वाज मेरा एक्सप्रेशन ये था कि वो डेफिनेटली वो हो तो रहा है, बट वो अच्छे तरीके से होना भी तो मैटर करता है ना, हाँ, that's true. कि उसकी जो फिनेस है, उसकी जो इंटेग्रिटी है एक आर्ट वर्क की, उसको बैलेंस करना भी तो बहुत मुश्किल होता है बिल्कुल शायद, ऐसे है। क्योंकि जो उसकी जो डेप्थ है, उसकी जो वेटेज है, वो आप एक वेरिएबल में लेकर जब आएंगे, या आप एक क्लोथिंग में Of लेकर course, आएंगे। it's also, like how we compose our paintings. हाँ It's definitely the same with the, कपड़ों के ऊपर जैसे हम डिजाइनिंग करते हैं. The same, it's your canvas. That's who balance the composition. Okay, Jazib, trust me, this is easier for you because you do the both things. But if you look objectively from some of the pieces जो हम वैसे भी देखते हैं, तो it is not so easy. It's yes, definitely. It's not easy. I'm not saying it's easy. Yes. But it's like, for us, Yes. Yeah. the process is the same. The process is the same. process is the same. अच्छा जानसे, मुझे ये बताओ कि जैसे वो कुछ पिक्सेलेशन वाले एलिमेंट्स थे, फिर वो वेव वाला एलिमेंट था, फिर कुछ फ्लावर्स भी थे उसके अंदर, तो वो तुम्हारी प्रैक्टिस में कहाँ से आया, और तुम उसके बाद कहाँ से उसको कनेक्ट करते हो अपने काम में? मेरा मेजर मिनिएचर पेंटिंग था. Okay. So of course when you think about miniature painting, आपके दिमाग में मुगल era and Persian paintings and Indian paintings ही आती है. Definitely आता है। So I was also inclined towards the idea of Nintendo nostalgia. वहाँ से आ रहा था, and then also I had this approach of futuristic सही। थोड़ी सी. So I thought why not just combine both of the mediums, because ठीक है। that's how it can be relatable to us, to our generation. सही। So yeah. सो यानी कि तुम्हारे पे वो चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया और वो वाले फैक्टर्स भी हैं, एक पर्सनल एस्पेक्ट भी And जो मेरी प्रैक्टिस थी मिनिएचर की वो भी है. वो भी इसके अंदर मिक्स है, वो भी मिक्स है। नो दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। ओके, टेल मी अबाउट कि अभी क्या चल रहा है तुम्हारे, अभी किस किस्म के प्रोजेक्ट हैं, और आगे किस किस्म के कोई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? अच्छा, अभी I have an upcoming exhibition in Alhambra, November में है. I'm working on that as well, and meanwhile I have a job.
Yes. Yes. वो तो साथ साथ चल रही है. साथ साथ चल रही है. Yeah. It's also a good experience at Outfitters. I mean, it's a great firm. अच्छा जानसे मुझे ये बताओ कि what's in future for you? कोई upcoming projects है जो existing projects हैं, क्या चल रहा है उसके अंदर? अच्छा, I have an upcoming exhibition at Alhambra, November में है. It's a 4-person show. Okay. So I'm a part of that exhibition. Nice. और उसकी कोई details किस किस्म का काम है, क्या चीज़ें हो रही हैं? सिर्फ visual related है या कोई और भी? Visual oriented है. So it's gonna be paintings most probably, not installation. But yeah, I haven't like started working on it yet, so I have time. Yeah. सही है. और ये हमरा के अंदर है कोई और क्यूरेट कर रहा है इसमें? I have a batchmate. She's curating the show. Okay. So we're looking forward to it, and then if anyone wants to Yeah, see sure. Do Yeah. visit. Janzib, I think तुम कोयटा से हो, right? Yes. Okay. So मुझे ये बताओ कि coming from कोयटा and to लाहौर, तुम NCA के तो वक्त लाहौर आए थे, तो वो तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस है लाहौर में आना और लाहौर में रहना, स्पेशली? कल्चरल शॉक तो लगा था मुझे इधर आके, बट बैक स्टोरी ये थी कि मुझे तो एनसीए में नहीं पता था, बट आई यूज्ड टू पेंट एंड यूज्ड टू मेक ड्राइंग्स. तो देन मेरे दोस्त डिस्कशन में देन ही टोल्ड मी कि देयर इज एन इंस्टीट्यूट इन लाहौर जो कि सिर्फ आर्ट पढ़ाते हैं. सो आई हैड माय पेरेंट्स सपोर्ट, देन आई अप्लाइड एंड टेस्ट वगैरह दिए, सो आई गॉट इनटू एनसीए. But coming from Quetta, it's very slow paced and organic. मतलब less exposure. So coming from that city to it's a fast paced city. So मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था शुरू में adjust होना, but then you get used to it. क्योंकि आपको like minded लोग मिल जाते हैं वहाँ पे. So which makes it easier. Also like NCA helped me to unwind myself a lot as a person. Personal growth wise, it helped me a lot. Okay. Social experience कैसा है तुम्हारा लाहौर का भी? Social experience, it keeps on changing. I see. How? I see something interesting over here. Yeah, because कॉलेज वाले टाइम पे दोस्त वगैरह थे, अभी भी हैं कुछ रह गए, but most of them moved back to their cities and some of them went abroad for masters. So we still have communication, but then I got a job at Mariavi, then I have friends from Mariavi as well. So keeps on evolving. But what do you think about the loudness in Lahore ki? I think in general Punjab is very open, but then Punjabis are very culturally loud as well. So वो भी culture shock का हिस्सा था कि यार मतलब. हाँ, it was because अभी भी मैं कोयटा जाता हूँ ना, it's very like slow. इधर मैं जाके बस 2-3 दिन से सुकून करता हूँ. So I enjoyed that part now. हमने पिछली पॉडकास्ट में एक गेस्ट से एक चीज़ पूछी थी कि हम लोग की बात कर रहे थे, जिसमें से ये चीज़ निकली कि शायद ना जब हम पाकिस्तानी डिज़ाइन की बात करते हैं या किसी एक एस्थेटिक की बात करते हैं, तो शायद हमें ना फैशन के अंदर और आर्ट के अंदर एक पाकिस्तानी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी नज़र आती है, चाहे मॉडर्न है या कंटेम्प्रेरी आर्ट है, वो उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तानी एक रमक सी नज़र आती है. बट इफ़ यू टॉक अबाउट डिज़ाइन इन ब्रॉडर सेंस, कम्युनिकेशन डिज़ाइन, UI, UX, website, product design or whatever, तो उसमें वो कुछ missing element नज़र आता है. I feel like art is more personal. ठीक है. तो उसमें you have the control. सही. Communication design में आपने communicate करना है and you have to communicate the whole thing to the world. So एक तो we are confused as a society, to be honest. ठीक है. Even if you talk about the interiors in the houses, and now we want big windows, modern houses, and we have 9 months of summer. सारे दिन धूप आती है, but जो पुराने architecture था, the domes and the arches, वो किसी रोशनदान, वापस हाँ, उनका पर्पस था भाई, वो किसी मकसद के लिए बनी हुई थी. The courtyard concept, कि आपके अगर इतनी शहर में गर्मी है तो आपने उसको कैसे ओवरकम करना है. But now we are inclined more towards the modern side, not knowing the problems, technical side का तो पता ही नहीं है इसकी. तो कहीं ऐसा तो नहीं कि देखो अगेन मैं फैशन का चलो नहीं कह सकूँगा, लेकिन फिर भी आर्किटेक्चर या हमारे लिविंग के अंदर we more focused on the outward things, even in design or maybe in our way of living, हमें ज़्यादा ये फिक्र है कि दिखने में कैसा लगेगा, Exactly. लेकिन functionality wise हम भूल जाते हैं चीज़ों को.
रहने में कैसा है रहने या में कैसा है? पहनने में कैसा है, Exactly. उससे हमें कोई So that's why I told you we are a confused society. We want modern concepts without knowing the technicalities and functionalities. So yeah, there's a clash. अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि अगर तुमने ये बात की तो कहीं इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी या चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कहते लेकिन रोल जो है वो हमारी तरह के लोग नहीं प्ले करते, डिज़ाइनर्स एंड आर्किटेक्ट्स एंड यू नो इंटीरियर के लोग या जो भी, अगर इस तरह की कोई कल्चरल बात है, confused as a nation or maybe focusing on what's more on the outside, less on the inside of functionality, तो कहीं ये हमारा रोल नहीं होता? हमारा रोल भी होता है कि आई थिंक हमें ज़्यादा इसको कन्वे करना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए rather than you know listening to the clients. क्योंकि clients की भी सुननी पड़ती है. It's their property, it's their house. It's their paycheck. It's their paycheck. Yeah. So वहाँ पे आके हम थोड़े से हो जाते हैं. तो ये एजुकेट करने की ज़रूरत है कि भाई what's good, what's not good. It has its own pros and cons, you know. मुझे लगता है मेरे कुछ दोस्त इस बात से नाराज होंगे कि तुमने हमें you've thrown us under the bus, but I don't feel you know maybe not चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि हम लेकिन प्रॉब्लम सॉल्वर्स तो होते हैं. Exactly. सोल्यूशन बिल्डर्स तो हम आपको फैक्ट्स देनी चाहिए, रीजनिंग एंड फैक्ट्स देंगे तो अगला बंदा अंडरस्टैंड करेगा ना. हम तो अभी बहुत जुगाड़ी सीन में आ गए हैं. अभी देखिए आप उसको ये नहीं, अगर तुम्हारे उसकी बात ग्लास विंडोज होती है, अगर आप उसको ये नहीं बताएंगे या उसको एक सोल्यूशन नहीं देंगे कि सर ग्लास विंडोज आप लगा रहे हैं तो ये ना लगे, दिस इज एन सोल्यूशन, तो then maybe then he or she would understand. If the world is going towards minimalism and modern, you can play around with considering the old architecture in mind and create something else. Why do you have to copy the modern houses जो आपने बाहर देख आए हो and आपने बस आगे उसको replicate करना? यूरोप के अंदर environment is फर्क. हाँ, exactly. The winter का time span कितना ज़्यादा है? यहाँ पे winter कितना है? Not even 4 months now. लाइट की इंटेंसिटी भी मॉडल जो यहाँ पे. Exactly. अच्छा, सो जैसे वी सिटिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म के जो टेक्नोलॉजी की बात करता है, फ्यूचर फेस्ट एंड इजाद लैब इन जनरल, दे आर वेरी कंट्रीब्यूटिंग इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग एन इकोसिस्टम और लोगों को इकट्ठा लाने का काम दिखाने के अंदर. नाउ आई एम वंडरिंग कि हम टेक्नोलॉजी का जो एवरीडे यूज है इन जनरल लाइफ के अंदर, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दैट? I think it has its pros and cons. I am not very in the favor of technology because हमने टेक्नोलॉजी तो दे दी है but उसको इस्तेमाल करने का तरीका नहीं बताया हमने. सही है. There's no limitation. मतलब एक छोटे बच्चे से लेके बड़े तक मोबाइल लेके बैठे हुए हैं. I mean, is that okay? आप उसको एक्सपोजर इतनी छोटी उम्र में दे रहे हो जो उसका दिमाग ही नहीं है. तो इसमें क्या पॉलिसी होनी चाहिए या? I think there needs to be a certain limitation. Technology helped us to grow, but also it destroyed a lot of things. There has to be some limitation. Yes, definitely. मतलब there was a concept of खत आते थे, खत जाते थे, फोन के लिए आपको कितने पैसे लगाने पड़ते थे. Now everything is so accessible कि उसका आपको पता नहीं चलता कि आप किधर उसमें खराब हुए जाते हैं चीज़ों में. जो एक वैल्यू थी ना रिलेशनशिप्स की वो डिस्ट्रॉय होती जाती है. ईज ऑफ यूज के चक्कर में आप बहुत सारी दूसरी चीजें Exactly. सैक्रिफाइस कर दो. ओके, दिस इज ओके. एंड देन व्हाट अबाउट टेक्नोलॉजी इन फैशन? टेक्नोलॉजी इन फैशन इट हेल्प्ड ग्रोथ में बड़ी हेल्प हुई है. Digital marketing, of course, now Instagram is a thing, and on trend आपको क्या चीज़ें चल रही हैं, the global trend, everything is accessible now. कि मतलब आप स्क्रीन खोला आप बताओगे कि दुनिया के उस कोने में क्या चल रहा है. ठीक है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हिसाब से भी आई थिंक सोर्सिंग या सप्लाई anything it's just on one click. वहाँ पर डेफिनेटली टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूटिंग है. ओके. आई थिंक because I think कोविड के बाद भी कोविड में बहुत मुश्किल आया था. किस तरह? कोविड में आप बाहर तो जा नहीं सकते थे. So it was a time टेक्नोलॉजी जब ज़्यादा बूस्ट हो गई थी तो आपकी जो ऑनलाइन सेल्स थी वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी. उसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स भी रहे ना, वी गॉट सो यूज्ड टू द कंफर्ट एंड घर पे बैठ के चीज़ें मंगवाने वाला दैट नाउ इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ. मुझे अभी कोई बता रहा था, मैं उस ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनकी जो सेल थी वो 1.2 बिलियन थी. जस्ट आई थिंक देयर सेल डे लॉन्च डे. ओके. आई थिंक शायद ये नंबर था, मैं शायद
ड्यूरेशन का वक्त ना कह रहा हूँ, बट स्टिल इट्स अ ह्यूज नंबर एंड इट्स जस्ट ऑनलाइन सेल्स. तो वो जो है आई थिंक जैसा हमने बात की कोविड के अंदर, वो बाइंग ट्रेंड भी शायद चेंज हो गया काफी. सारा जो सोसाइटी जिस तरीके से वो बिहेव करती है वो चेंज हो गया. सबकॉन्शियसली वो चीजें सारी हिट कर गई हैं. जैसे हम समझते हैं कि नॉर्मल है, वो नॉर्मल नहीं है इस तरह से. उसके आफ्टर इफेक्ट्स रहे हैं अभी तक हमारे. फिर ये चीज़ भी है कि जैसा अब जो स्टोर का एक्सपीरियंस था, जैसा यू विजुअल मर्चेंडाइजिंग, नाउ इट्स आल्सो अ मैटर कि आप वही एक्सपीरियंस ऑनलाइन कैसे लेकर जाते हैं. ये भी अब शायद एक उस कन्वर्सेशन का उसका हिस्सा बन जाएगी कि चलो कंफर्ट की बात आती है ना. ऑनलाइन तो आप फिर घर बैठे भी कोई भी चीज़ ऑर्डर कर देते हैं. सो द कंफर्ट इज ऑन द फ्लो एंड इट्स ऑन इन योर फोन. तो आप कंफर्ट क्रिएट कर रहे हैं तो लोग दोनों जगह आ सकते हैं. Do you see जो in-store buying है, do you see it scaling down or scaling up in coming years? It's scaling up, I'm sure. Yeah, definitely. Okay. So that's interesting because वो कोविड के बाद अगर लोग ऑनलाइन भी सेल्स हो रही है, then you know लोग वापस भी आना चाह रहे हैं उसके अंदर in-store के अंदर. तो वो Online is something global. Okay. If you talk about fashion brands जो पाकिस्तान के हैं, ऑनलाइन पे आप बाहर भी चीज़ें बेच रहे हो, बट स्टोर्स तो आपके पाकिस्तान में हैं. Okay. I think this was really insightful. Thank you so much, Hazim. Thank you so much. It's really amazing to see your work, your projects, and I'm really happy जिस तरीके से आपने अपना mix किया दो genres को और successfully managing those both hats. Thank you so much, Hazim. It was a pleasure. Thank you so much for coming in. I think I had a really good time because I was really fascinated कि अच्छा ये एक बंदा जो विजुअल आर्ट्स भी कर रहा है और फैशन में एक अच्छी मैनेजरियल या क्रिएटिव जॉब को भी मैनेज कर रहा है. तो इट वाज रियली नाइस टू सी स्पेशली वो प्रोजेक्ट जो जैसे कि आपने वो आर्ट को और वेरिएबल्स को मिक्स किया. इट वाज अमेजिंग. Thank you so much. And yeah, I had a really good time. Likewise.